Whenever there is a flare up on the borders, on the line of control, whenever tensions escalate between India and Pakistan, there are ceasefire violations, there is firing, and the first victims are the border residents, the people who live close to the line of control. We saw this, the kind of devastation they faced during the India-Pakistan war. In May, it lasted for 3 days, but the time preceding that and even the time post that, the kind of shelling that was happening, the heavy artillery fire that Pakistan directed towards the border residents, it has absolutely smashed their lives. They had to move out, migrate. In fact, many were killed, their properties were damaged, houses damaged, public infrastructure including hospitals, schools, especially if you talk of border areas of Rajouri, even in Poonch and then Uri in the Baramulla district, the complete line of control in Kupwara, the damage was immense. Now post that, the government had claimed that they have made a policy, in fact ordered that there would be 1,000 bunkers that would be made in these areas, and that would be done based on the data. The worst affected areas, the people who are in direct line of fire will get more bunkers, and it will be proportionate to the population of various villages. But it's been almost 3 months, but nothing has moved on the ground. The border residents obviously are angry. They say that at that time, the leaders, the government heads, be it the local level, central level, the opposition parties, all of them came and had assured promise that all this will be fast-tracked, bunkers will be made, and timely appropriate compensation will be paid to them. But to this day, while as far as Kupwara is concerned, 40 compensation cases have been sent to the Deputy Commissioner. In Baramulla also compensation has been given. Same is the case in Rajouri, Poonch. But the locals say that as far as completely smashed or damaged houses are concerned, the government is only giving them around 1.4 lakhs. And in this day and age, it's not sufficient to construct a single room, leave alone a complete house. यहाँ पे जो बंकर्स दिए गए हैं सर, ये कम्युनिटी बंकर्स दिए गए चुरुंडा, बटग्रां और नामला, सुहरा, हथलंगा, कमलकोट के कुछ एरियाज में और ये अपना नावा वगैरह में, लेकिन कम्युनिटीज़ का कोई भी बेनिफिट आम पब्लिक को नहीं है। एक आबादी से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं और उसका इस्तेमाल टोटली कोई आवाम कर नहीं सकती है। जैसे सिलीकोट आप ले लें, एक जगह पे है, एक बैंकर एक साइड पे है, एक बैंकर दूसरी, आबादी से बहुत दूर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी को बेनिफिट होगा तो कोई नज़दीक का घर वाला उस पर जा सकता है, और जब शेलिंग होती है तो कोई भी आदमी उस पर जा नहीं सकता, स्पेशली बॉर्डर के लोग। और दूसरे नंबर पे ना वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट है। उन बैंकर्स को आप जाके ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूँ, उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ना वहाँ पे पानी है, और वो वॉशरूम बना है तो बना किस बुनियाद पे है, ना उसका कोई गैस सिस्टम है, ना कोई चीज़ है, ना पाइपलाइन उसकी सीधी है। तहसील उड़ी के लोग यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके आप जो भी बैंकर्स बनाए, पहले तो इंडिविजुअल दिए जाएं, अगर नहीं तो सरकार को दिए, आम लोगों को दिए जाएं। लेकिन अगर इज्तमाही तौर पे भी आप उनके लिए बनवाना चाहते हो तो बस्तियों के बीचों बीच बनाया जाए उनको, और सारी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड, स्पेशली वॉशरूम और पानी की व्यवस्था उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल 1,20,000 रुपये शायद वो रेड क्रॉस की तरफ से मिला हुआ है, और पार्शली डैमेज कुछ 6,000 और 4,000 3,000 ऐसा कुछ करके। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी, एलजी गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, दोनों से, सॉरी स्टेट तो है नहीं, ये यूटी है, दोनों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशली इसके लिए कोई बजट बनाया जाए। एटलीस्ट यहाँ के मकानात जो है कम से कम 10 से 20 लाख रुपया एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी एक घर बनाने, अपना आशियाना बनाने में लगा देता है, और वो फिर आशियाना एक छोटे से शल से गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद उसकी ये होती है कि सारी ज़िंदगी वो आशियाना छुट पे जब टूट जाता है तो सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर उसको 1,20,000 रुपये मिले तो ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले कबूल भी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली ये गुजारिश रहेगी कि रीअसेसमेंट किया जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए।
So they're not happy with the scales of compensation and want more as far as the government is concerned. On the other hand, as far as bunkers are concerned, the work is yet to be started. The government had said that the orders have been given to the Rural Development Department, to the R&B and other departments to construct bunkers, proper effective bunkers, be it community, individual bunkers and various locations. But right now the situation is that nothing has moved on the ground, not a muscle has moved. So that's something that is making these residents angry. One can understand their pain, what they've gone through in the last 3 months. Their lives have been smashed, their houses damaged, they had to move out, they lost their family members. And now when they expect more from the government in the form of compensation, in the form of timely constructions of bunker, the government as of now is missing. So that is the SOS from the LOC, and people also are wary that on one hand when the government of India says that Operation Sindoor is still ongoing, it's not being closed, so they expect that there could be any flare up any moment, and then again they're trying to go back to their locations, trying to rebuild their lives, and that will be all disintegrated again. So they need compensation which will be proportionate to the kind of damage they suffered, and also immediate construction of bunkers, be it community bunkers, individual bunkers, and that is something that should be fast tracked, and government should fulfill the promises and translate their words into action on the ground. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिसेंटली जो हमारी शेलिंग हुई उसमें तो सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ पूरे एरिया का, पूरी उड़ी का मान लें आप। और इसमें कई मकान हमारे जो थे वो पार्शली डैमेज हुए और कई मकान हमारे फुली डैमेज हुए। अब मैं इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि इसकी कैटेगरी बनाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे असेसमेंट करवाएगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। हमारे कमों बेश 550 से ऊपर मकान जो थे उड़ी के अंदर, कुछ पार्शली और कोई फुली डैमेज हुए। लेकिन मुझे एक चीज़ ये ज़रूर यहाँ पे कहनी पड़ेगी और ये कहना मुनासिब समझूँगा कि इस वक्त तक जो हमारे वहाँ पे जो पेमेंट दी गई है, कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे फुली डैमेज के लिए 1,30,000 रुपये और पार्शली कच्चा के लिए 4,000 और पार्शली जो पक्का था उसके लिए 6,500 और जो टीन शेड्स थे उनके लिए 8,000 रुपये। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त तक सिर्फ 60 लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1,30,000 रुपये वागुजार किया गया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। 1,30,000 रुपये में जिस बंदे का मकान 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख या 10 लाख का बना है, वो उसे डिसमेंटल करने में भी 1,30,000 रुपये जो है वो काफ़ी नहीं है। तो भला वो कैसे वो मकान बनाएगा और उसमें कैसे रह पाएगा। दूसरा, जो पार्शली इन्होंने वहाँ पे किए हुए हैं, जिनको पार्शली दिखाया हुआ है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि आप इसकी रीअसेसमेंट करवा के ये देखिए कि जिस मकान के ऊपर शैल गिरा है या जिसके आंगन में शैल गिरा हुआ है, उसके धमाके से, वो हम लोग जानते हैं कि जब उसका धमाका होता है तो वो कितना ख़तरनाक और कितनी दहशत वाला धमाका होता है। उससे पूरा मकान लरज़ जाता है और उसके अंदर जो क्रैक्स आते हैं उससे वो मकान रहायश के काबिल नहीं रहता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि कई लोगों को, उसमें से सबका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें से कई लोगों को उसमें पार्शल में दिखाया गया और उन्हें 6,500 रुपये दिया गया है, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी और वो ये नाकाफ़ी है, वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2002 में जब शेलिंग हुई तो उस दौरान में इंडिविजुअल बैंकर कुछ लोगों को दिए गए थे, लेकिन उसके बाद हमारी बदनसीबी ये हुई कि 2005 में अर्थक्वेक आया और उसके अंदर उड़ी से नीचे वाला सेक्टर जितना भी था ये कंप्लीट 100% डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अंदर मकान, बैंकर्स वगैरह सब खत्म हो गए। उसके बाद बैंकर्स की कोई स्कीम नहीं आई, अलबत्ता स्कूलों के लिए एक बैंकर गवर्नमेंट की तरफ से 4-5 साल पहले मिले थे, जो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि ना होने के बराबर हैं। किसी स्कूल में, एक गाँव के अंदर जिसकी पॉपुलेशन 2,000 या 2,500 या 3,000 है, वहाँ पे एक स्कूल के आसपास कहीं पे वो बंकर बनाया गया है। अभी रिसेंटली जो वादा किया गया है कि मतलब बंकर दिए जाएंगे, तो उसके लिए अभी तक किसी किस्म की कोई भी स्टेप जो है वो उठाया नहीं गया है। तो अब मैं आपसे एक आपके वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये जो 1,30,000 रुपये आप फुली डैमेज के लिए दे रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और बिल्कुल ये सफिशेंट नहीं है। ये मुझे ये लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था कि शायद इसमें कुछ बढ़ावा होगा, और मेरी गुजारिश ये रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके लिए ये आगे ये फॉरवर्ड करें कि ये 1,30,000 रुपये इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। और जो पार्शली डैमेज दिखाए गए हैं उनमें बहुत सारे मकान इस वक्त ऐसे हैं कि जो पार्शियल नहीं है, वो फुल डैमेज है, लेकिन उन्हें पार्शियल दिखाया गया है, वो रहने के काबिल नहीं है। इनकी रीअसेसमेंट करवाई जाए। Campus Muzaffar Ahmed, Meet Farid, Srinagar for India Today.